Good morning, student. I am Rajendra Simori, your maths teacher from the Gyan Manjari Vidyapit Howard. Again, all of you in this online session of class 6 mathematics, and we will learn today something more regarding the highest place value and lowest place value. Already we discussed into the earlier part, that is some conversion methods into highest place to lowest place, as well as from lowest to highest. Each and everything we explained into the previous lecture. So just we will start here from today some portions of some another methods, that is known as the estimation. So that estimation method is available on your supplementary book, page number 7. So please keep this supplementary book within you. Whenever it required, you can also see from the book, and whenever you have to showing some concepts of that particular estimation, that then it will be find from that book. So without wasting the time, just we have to move forward, and we have to take here the first portion, that is the estimation. So what do you understand about these concepts? And these concepts available on your SB7, your supplementary book 7 के पेज के ऊपर available है, and this is the concept 7. Now this concept times 6, that is using here the approximation. Now everybody shown that things how to go for this approximation. Sometimes we have to using these kinds of the situations if we do not need the exact value of a quantity. Again I repeat that if we are not needing such kinds of the exact value of a quantity, so we use a quantity that is close to or near the exact value. अब हमें कभी ऐसा भी होता है कि हमारी क्वांटिटी जो होती है वो क्वांटिटी होती है, वो एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं चाहिए. That time we are using only for the near value of that exit value. जो वैल्यू है उसके नियर वन वैल्यू हम चूज करते हैं, हम रखते हैं, उसकी क्लोज जो वैल्यू है वो हम रखते हैं, उसको हम अप्रोक्सीमेशन बोलते हैं. So for example, if we find this kinds of the situation when we are not need such kind of the exact value, instead of the that particular value we have to go for the closest value or near one value of that exact value. That time this approximation is required. So for example, we can say here that the number of trees in a city, since we cannot count each and every trees. अब आपको ऐसा बताया गया है कि हाउ मेनी ट्रीज अवेलेबल इन आवर सिटी महुआ. So we can't be able to count each and every trees in a whole city. So that time we have to go for the approximation value. We say that there are nearly 20,000 trees are there, 22,000 trees in our Mawa cities and everything. So we can say that suppose if we are not go for the exact value, and if we choose some nearer or some close value of it, that time approximation is needed. So this is the concept of the approximation. Now we are going for the how to choose this approximation. First of all, rounding off numbers to the highest place. Now after seeing this all these things, we have to watch one videos for it, because of how to round off number to the highest place values is there. So from your supplementary book you can also see like that. Find the digits. So how many steps you have to perform for rounding of numbers to the highest place? So here two things, three steps are basically required first. That is a basic, or that is a main steps for it. So that is if we have to use the first steps. So find the digit next to the highest place. Suppose if we have to using two examples here, 16572. Now, which one is the highest digit inside the 16,572? Obviously, 6 is the highest place. Similar way in second example here given 14,236. So
Among them 1, 4, 2, 3, 6, that is considered into the highest one. So first we have to take 16,572. उसमें आप देख सकते हो कि 6 है, दैट इज ग्रेटर देन 5. 5 से 6 नंबर है वो बड़ा है. सो वी कैन यूज हियर फाइंड द डिजिट नेक्स्ट टू द हाईएस्ट प्लेस. हाईएस्ट प्लेस से नेक्स्ट टू जो डिजिट होती है, मतलब हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे. हाईएस्ट वैल्यू अभी हमारे पास 16572 में हाईएस्ट प्लेस वैल्यू कौन है, 1 है. उसके नेक्स्ट वन वाली यानी 6 है. सो हाईएस्ट प्लेस के बाद वाली डिजिट हम चूज करेंगे पहले स्टेप. तो यहाँ पे भी क्या होगा, 1, 4, 2, 3, 6, इसमें हाईएस्ट प्लेस है 1. हाईएस्ट प्लेस वैल्यू से सेकंड वाली यानी फोर्थ वन को हम चूज करें. सो राउंडिंग ऑफ कैसे करना है उसके लिए हम स्टेप परफॉर्म कर रहे हैं. उसमें पहला स्टेप है फाइंड द डिजिट नेक्स्ट टू द हाईएस्ट प्लेस के बाद वाली डिजिट को हम फाइंड करें. तो पहले एग्जांपल में हाईएस्ट प्लेस वैल्यू के बाद है सेकंड वन पोजीशन पे, नेक्स्ट पोजीशन पे डिजिट है वो 6 है. और 1, 4, 2, 3, 6 वाले एग्जांपल्स में हाईएस्ट प्लेस वैल्यू से नेक्स्ट डिजिट 4 है. So this is becomes here also be green in your supplementary book. Second steps we have performed here. If the digit is greater than or equal to 5, आपको क्या करना है सेकंड स्टेप में, आपको यही करना है कि इफ डिजिट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, 5 या 5 से ज्यादा है, 5 या 5 से बड़ी है, देन यू हैव टू राउंड अप. तब आपको राउंड अप कैसे करना है, उसमें फर्स्ट द हाईएस्ट प्लेस इंक्रीज्ड बाय 1. आपको क्या करना है, जो हाईएस्ट प्लेस है उसमें एक का ऐड करना है. मतलब हाईएस्ट प्लेस हमारा 16572 में हाईएस्ट प्लेस हमारा 1 है, आपको पता है. तो अब हम क्या करेंगे, जो भी चीज़ यहाँ पे करनी है उसमें पहली चीज़ हमें हाईएस्ट प्लेस से सेकंड डिजिट चूज करनी है. सेकंड चूज करने के बाद सेकंड स्टेप में हमें जाना है कि यदि ये 6 जो सेकंड वन डिजिट हमने चूज की यहाँ पे 6 है, तो 6 है वो 5 से ज़्यादा है, 5 से बड़ी है या इक्वल है. यदि 5 से बड़ी और इक्वल है तो ऑटोमेटिकली हमें हाईएस्ट प्लेस वैल्यू में एक का इंक्रीमेंट करना है. मतलब 1 वी हैव टू इंक्रीज ऑन इट. तो यदि हमारा हाईएस्ट प्लेस वैल्यू यहाँ पे 1 है तो ऑब्वियसली कितना हो जाएगा, 2. तो आप देख सकते हो यही चीज़ मेंशन की है. देखो हाईएस्ट प्लेस में यदि सेकंड डिजिट आपने जो चूज की है वो 5 और 5 से ज़्यादा है तो ऑटोमेटिकली हम हाईएस्ट प्लेस वैल्यू में 1 का इंक्रीज करेंगे. 1 इट शुड बी इंक्रीज्ड. ऑल अदर डिजिट्स आर 0. उसमें एक ही हाईएस्ट प्लेस का ही एक ऐड करेंगे, बाकी सभी वैल्यू 0 रख देंगे. जैसे कि यहाँ पे बता रहा है क्योंकि 1 में एक ऐड किया तो 2 हो गया, बाकी सभी डिजिट 0 की. तो सेकंड स्टेप तक पता चल गया. ओके, नाउ वी आर गोइंग फॉर द थर्ड स्टेप. इफ द डिजिट इज लेस देन 5, यदि डिजिट लेस देन 5 है तो हमारा सेकंड एग्जांपल यहाँ पे पता है आपको कि आपकी जो सेकंड प्लेस पे आने वाली डिजिट थी वो 5 से या 5 से छोटी. सो इफ 4 इज लेस देन 5, 5 से कम है, तो ऑटोमेटिकली हमें क्या करना है, इफ द डिजिट इज लेस देन 5, एक कंडीशन तो देख ली हमने जिसमें ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 होगी, तो हमें हाईएस्ट प्लेस वैल्यू में एक ऐड करना है, बाकी सभी को 0 रख देना है. यदि वो डिजिट जो चूज की गई डिजिट वो 5 से कम वाली है, देन द हाईएस्ट प्लेस स्टेज द सेम. तब वो हाईएस्ट प्लेस एज इट इज रहेगा. मतलब आप देख सकते हो कि 1, 4, 2, 3, 6 में हाईएस्ट प्लेस 1 है तो 1 एज इट इज रहेगा नीचे. समझ में आया.
और यदि 5 से बड़ी और 5 जितनी है तो उसमें एक ऐड करना है। इतना बात आप समझ में आ गया? ओके, सो दैट्स वेरी इजी थिंग्स। सो हाईएस्ट प्लेस वैल्यू स्टे द सेम, ऑल अदर डिजिट्स आर जीरो। बाकी सभी डिजिट पहले सेकंड स्टेप की तरह तीसरे स्टेप में भी ऐसे ही करनी है। समझ में आ गया? तो वैसे तो राउंड ऑफ नंबर टू द हाईएस्ट प्लेस वैल्यू में दो ही स्टेप है। या तो वो हाईएस्ट प्लेस वैल्यू चूज करने वाला डिजिट, नेक्स्ट सेकंड वन डिजिट जब आप चूज करेंगे वो बड़ा होगा 5 से या 5 जितना होगा, तो आपको हाईएस्ट प्लेस वैल्यू में एक ऐड करना है। यदि 5 से छोटा है, स्मॉलर है, देन वी कैन यूज हियर एज इट इज। वो नंबर हाईएस्ट प्लेस वैल्यू एज इट इज रखेंगे और बाकी सब जीरो कर देंगे। So that is also be main things over here. So let us watch one video for highest numbers to the highest place, how to rounding up or how to estimations we have to use. So let us move on that video. Carefully you watch that video. If you not understand, you again rewind it. So let us move on that video. Rounding off to the highest place. Dear students, today we will learn about rounding off numbers to the highest place. Let us take the 5-digit number 12,357 and look at the steps needed to round it off to the highest place. The first step is to find the digit in the highest place. Here it is 1. Then we find the digit next to the highest place. Here it is 2. The third step is to apply the rule of rounding off. If the second digit is less than 5, the highest place stays the same and the other places become 0. Here, the number 2 is less than the number 5. So, the highest place stays the same and the other places become 0. So, when we round off 12,357 to the highest place, we get 10,000. Let us look at another example. Here we have the number 16,572. First, we find the highest place, then we find the digit next to the highest place. Here we see that the digit next to the highest place is 6, which is greater than 5. If the digit is greater than or equal to 5, add 1 to the highest place and the other places become 0. So, we should add 1 to the highest place and the other places become 0. So, when we round off 16,572 to the highest place, we get 20,000. So, dear students, remember these 3 steps for rounding off numbers to the highest place. Happy learning! So this is one video for how to rounding of the highest value. That is highest place values we can also using here, and both of the methods we already in the beginning of this video already we study. Now just we are go forward to understand about the some of the examples. So in this estimation procedure, just we have to gone through of this estimation. I already say something about the some hints and concepts from your supplementary book. Now we are going on to the estimation part. So just we have to take it one by one examples from here. So first of all, here some approximately what is the height of the tallest girl. अब आपको पता नहीं है कि हमें यही चीज़ पता है कि जो सबसे छोटी है उसकी हाइट 4 फीट है। तो ऑब्वियसली सबसे टॉलेस्ट वन है, वी कांट से दैट बिकॉज ऑफ वी आर नॉट आफ्टर इफ वी हैव टू मेजर हर length height sorry, if we measure her height, then we definitely say that the height of this particular girl is so and so. But if we can't say, but if we put into the three girls simultaneously together, and if we knowing about only one girl's height,
तो automatically we have to remains two girls, we automatically go for the approximation. Suppose if one girl's having the height is 4 feet, so obviously two are taller than that particular girl, so having the more heights of it, but that is only for the approximation, we cannot give the परफेक्ट, हमें यहाँ पे परफेक्शन की जरूरत नहीं है, जब हमें एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत नहीं है तभी हम अप्रोक्सीमेशन का यूज करेंगे, दैट इज कॉल्ड द एस्टिमेशन. Second thing here given that approximately how many candies must be there in this particular container. ये कंटेनर है सभी में, इसमें जो पर्टिकुलर कंटेनर है इसमें कितनी कैंडीज है हम देख के बता सकते हैं, हम सभी को गिनेंगे बाद में तो पता चल जाता है, उसको हम बोलते हैं एग्जैक्ट वैल्यू. बट बिना देखे, बिना knowing about that exact value, if we want to say something about how many candies inside that container, so obviously ये 7 जो कंटेनर है उसमें सभी में कितनी है. अब इसमें से एक जो बीच में राउंड मैंने किया अभी, उसमें से एक कंटेनर में 175 कैंडीज अवेलेबल है, तो हम बाकी सभी का अप्रोक्सीमेशन लगा के उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं. तो बाकी कितनी है 1 2 3 4 5 6, सो 175 इंटू 6 करने से, 175 इंटू 7 करने से ऑटोमेटिकली हमें वो चीज़ मिल जाएगी टोटल कैंडीज की. तो दिस इज कॉल्ड वन अप्रोक्सीमेशन एस्टिमेशन. सो हियर गिवन दैट अप्रोक्सीमेटली ये 4 फीट का है, तो ऑब्वियसली ये जो है वो कितने का हो सकता है, 5 फीट हो सकता है, दैट इज कॉल्ड वन एस्टिमेशन. यहाँ पे 175 कैंडीज अप्रोक्सीमेटली है, तो हम 200 को 7 से मल्टीप्लाई करो तो अप्रोक्सीमेटली कितना आता है, 1400 कैंडीज आर देयर. तो ऐसे ही हम एस्टिमेशन लगा सकते हैं, अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं. So here given the estimation, full definitions of here, estimation is the process of finding a fast and a close enough answer to a problem. Again I repeat this definition. Estimation is one kind of the process of finding a fast and a close enough answer to a problem. किसी भी प्रॉब्लम का क्लोज और फास्ट सॉल्यूशन लगाने की प्रोसेस को हम एस्टिमेशन बोलते हैं. इज इट क्लियर? एंड वी ऑल्सो रिमेंबर द रूल फॉर द एस्टिमेशन. द एस्टिमेशन आंसर शुड बी क्लोज इनफ टू द एक्चुअल आंसर. एक्चुअल आंसर से थोड़ा क्लोज आएगा, नियर आएगा. इट शुड नॉट टेक अप टू मच टाइम. ये बहुत सारा टाइम नहीं लेता है, इसको ही हम एस्टिमेशन बोलते हैं. Next thing is estimating the sum of 13,500. Here given the one example, 13,569 and 26,785. अब हमें क्या करना है, दोनों का एस्टिमेट करना है. द सम ऑफ 13,569. सो वी कैन फाइंड द एस्टिमेटेड सम बाय राउंडिंग ऑफ. हम क्या करेंगे, राउंडिंग ऑफ. जो अभी beginning of this video lecture we understood that how to rounding of the numbers to the highest place and adding them. So पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, राउंड ऑफ बोथ द नंबर टू द हाईएस्ट प्लेस. तो राउंडिंग ऑफ पहले हम करेंगे 13,569 का. आप अपने बुक में भी साइमल्टेनियसली कर सकते हो. 13,569 जस्ट यू हैव टू पुट, ऐसे ही आप नंबर लिखेंगे 13569. अब आप देख सकते हैं कि हाईएस्ट प्लेस वैल्यू से सेकंड वन डिजिट कौन सी है, 3 है. आप देख सकते हो, हमने आगे मेथड में देख लिया है, तो अब हम डायरेक्टली वो मेथड को ही यूज करेंगे. हाईएस्ट प्लेस वैल्यू आप पूरे नंबर में आप देखिए तो हाईएस्ट प्लेस वैल्यू 1 है. हाईएस्ट प्लेस से सेकंड डिजिट को चूज करना है. हाईएस्ट प्लेस वैल्यू से सेकंड वन डिजिट कौन सी है, 3. अब 3 को और सेकंड स्टेप्स के मुताबिक उस रूल में हमें यूज करना है. तो 3 दैट इज अ सेकंड वन एंड सेकंड वन दैट इज अ लेस देन 5. ये कैसा रूल यहाँ पे इंप्लीमेंट होगा, क्योंकि 3 है वो 5 से कम वाला नंबर है. सो 3 इज लेस देन 5. तो यदि 3 इज लेस देन 5 है तो हाईएस्ट प्लेस वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं करना है.
वो एज इट इज रखना है, लाइक 1 है तो 1 ही नीचे आएगा और बाकी सब प्लेस वैल्यू पे 0 रखना है। तो दैट इज राउंडिंग ऑफ 13,569 का राउंडिंग ऑफ होगा 10,000। समझ में आ गया? क्योंकि सेकंड जो डिजिट है वो 5 से कम है, तो सेकंड रूल हम यूज करेंगे। दूसरा राउंडिंग ऑफ 26,785, उसको हम राउंडिंग ऑफ में रखेंगे तब ध्यान रखना है कि हाईएस्ट प्लेस वैल्यू से सेकंड वन डिजिट है 6 जो ग्रेटर देन 5 है। 6 है वो कैसी है? 5 से बड़ी नंबर है ना। सो ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, तभी यदि 5 या 5 से ज़्यादा है तब हाईएस्ट प्लेस वैल्यू यानी कि 2 में हम 1 को ऐड करेंगे। यदि 2 में 1 को ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा 3, बाकी सभी प्लेस के ऊपर 0 रखेंगे। तो 26,785 का राउंड ऑफ होता है 30,000। क्लियर? तो ये चीज हुई, दैट इज वेरी इजी फॉर अंडरस्टैंडिंग। तो इसका आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा बिकॉज ऑफ इट्स एस्टिमेशन प्रोसेस। नेक्स्ट वन, अब हमें आफ्टर टेकिंग द एस्टिमेशन पहला स्टेप खत्म हो गया, अब हमें क्या करना है, स्टेप 2 परफॉर्म करना है, ऐड द राउंडेड ऑफ नंबर। अब 10,000 और 30,000 दोनों को ऐड कर दो तो हो जाता है 40,000। अब आप ऐसे लिख सकते हो आंसर में, द एस्टिमेटेड सम ऑफ 13,569 एंड 26,785 इज 40,000। इज इट क्लियर? तो ये हुआ आपका एस्टिमेशन with the sum of both of the numbers. Now let us check। अब हमें चेक भी कर लेना है कि ये सम जो होता है वो राउंड ऑफ करने के बाद जो फाइनल आंसर आता है वो एक्चुअल सम से कितना मिलता जुलता है। तो अब आप देख सकते हो कि आप वही दोनों नंबर का एक्चुअल सम करो रफ पेज में। तो एक्चुअल सम आप करेंगे तो 13,569 प्लस 26,785 का सम होता है 40,354। उसी का एस्टिमेशन आप देख सकते हो कि अभी हमने स्टेप परफॉर्म करके जो एस्टिमेशन लाए वो कितना है 40,000। तो एक आंसर 40,354 आता है एक्चुअल, उसके सामने एस्टिमेटेड कितना आता है 40,000। सो आप देख सकते हो कि ये करने में, एक्चुअल सम करने में आपको दिक्कत आती है, बट एस्टिमेटेड सम करने में आपको दिक्कत नहीं आती, बट यू कैन डू इट फास्ट एंड क्लोज इनफ टू द एक्चुअल आंसर। आप देख सकते हो कि आपका आंसर है वो एक्चुअल सम से नियरर है, क्लोज है। तो ये दो एडवांटेज के लिए हमें कभी भी ऐसा एस्टिमेशन प्रोसीजर करनी पड़ेगी। So I hope these things is very easy to understand. So let us move on the next points. Second examples हम यहाँ पे चूज करते हैं। हमें यहाँ पे एक पहला सम हमने किया एग्जाम्पल में, वो सम था। अब दूसरा एस्टिमेशन करते हैं वो डिफरेंस वाला है, मतलब ये दोनों के बीच में हमें डिफरेंस फाइंड करना है। पर डिफरेंस तो सेकंड स्टेप में फाइंड करेंगे, बट पहला स्टेप हमें क्या करना पड़ेगा, उसका एस्टिमेशन निकालना होगा। तो एस्टिमेशन निकालने के लिए फिर से पहला स्टेप, राउंड ऑफ बोथ द नंबर्स टू द हाईएस्ट प्लेस वैल्यू। पहला नंबर 28,789 है, उसमें सेकंड डिजिट आपकी 8 है। 8 है तो ऑब्वियसली 5 और 5 से ज़्यादा है, ग्रेटर देन 5 है। ग्रेटर देन 5 है तो हम हाईएस्ट प्लेस वैल्यू में 2 में एक ऐड करेंगे तो वो बन जाएगा 3, यानी 30,000 हो गया। वैसे ही राउंडिंग ऑफ सेकंड डिजिट, सेकंड नंबर दैट इज 3,800। 3,800 में आप देख सकते हो कि 8 भी सेकंड में 8 भी ग्रेटर देन 5 है। ग्रेटर देन 5 है तो ऑटोमेटिकली आगे वाली यानी हाईएस्ट प्लेस वैल्यू जो डिजिट है उसमें हम 1 को ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 4,000। यानी 30,000 और 4,000, यानी 30,000 में से 4,000 को हमें डिफरेंस यहाँ पे निकालना है, तो 4,000 हम निकाल देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 26,000। क्या आंसर आएगा? 26,000। तो 26,000 इज द आंसर ऑफ इट। लेट अस चेक। ऑब्वियसली जैसे हमने किया वैसे ही स्टेप नंबर 2 में हमारा 26,000 आ गया। अब हम उसको एक्चुअल वैल्यू से भी कंसिडर करेंगे।
तो ये दोनों का एक्चुअल डिफरेंस निकालेंगे तो हमारे पास 24,989 आता है। तो यदि हम एस्टिमेटेड डिफरेंस लाते हैं तो 26 आता है, तो इट मे बी वेरी नियर अबाउट योर एक्चुअल डिफरेंस। तो ये चीज़ हुई, तीन चीज़ दोनों एग्जाम्पल्स में वो परफॉर्म करनी है, कैसे स्टेप्स में मूव होते हैं वो आपको याद रखना है। So that is one actual procedure of it. Now let us move on to the product. तो एक सम का सम लिया एस्टिमेशन में, एक हमने सेकंड एग्जांपल लिया वो डिफरेंस का लिया, अब थर्ड वन हम ले रहे हैं वो प्रोडक्ट का ले रहे हैं। तो प्रोडक्ट में हम क्या करेंगे, क्योंकि पहला स्टेप तो सभी में कॉमन ही है, वो उसमें हमें राउंड ऑफ ही निकालना है। राउंड ऑफ दोनों का निकालने के बाद हमें दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन करना है, दैट इज कॉल्ड द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में क्या करना होता है, दोनों नंबर्स आफ्टर राउंड ऑफ बोथ द नंबर्स टू द हाईएस्ट प्लेस वैल्यू मल्टीप्लाइंग विथ दैट टू नंबर्स। ये दोनों नंबर्स में यहाँ पे आपको मिलता है 3670, 6 इज द ग्रेटर देन 5, सो वी हैव टू 3 में एक ऐड हो जाएगा तो 4000 हो गया। राउंड ऑफ 180 में ग्रेटर देन 5 ही है सेकंड डिजिट, तो ऑब्वियसली ये ग्रेटर देन 5 हुआ तो ऑब्वियसली 1 में एक ऐड हो जाएगा 2, सो 200 हुआ। 4000 इंटू 200 को मल्टीप्लाई किया देन इट बिकम्स 8 लाख। तो ये हुआ प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट का भी आप चेक कर सकते हो एक्चुअल प्रोडक्ट। ये दोनों आपको रफ में दोनों चीज़ करनी है, 3670 180 को सिंपल मल्टीप्लिकेशन करो और उसका आंसर और एस्टिमेटेड जो आपने अभी यूज़ की वो मेथड यूज़ करने के बाद ये दोनों में कितना डिफरेंस आता है वो देखते हैं। अब आप देखते हो कि ये फास्ट तो हो जाता है, बट आप एक्चुअल प्रोडक्ट और एस्टिमेटेड प्रोडक्ट में कितना डिफरेंस आता है, देखो बहुत सारा। सो नो क्लोज इनफ। एक में आता है 6,60,600 और दूसरे का आंसर आता है 8 लाख। सो दैट इज ह्यूज गैप बिटवीन 1,40,000। कितना गैप है, 1,40,000। सो वी कांट यूज दिस क्लोज इनफ सो टू द एक्चुअल आंसर। हम फास्टली तो कर सकते हैं, बट जब हम प्रोडक्ट करते हैं तो हमारे आंसर में दिक्कत आती है, गैप आता है। So, at the conclusion of it, when estimating product, rounding of the numbers to their highest place does help in getting an estimation quickly, but it is not always close to the actual answer. हमें एक्चुअल आंसर तक नहीं पहुंचाता है, बस इतनी उसमें दिक्कत है, वो फास्टली तो हम कर ही सकते हैं। Next one, we can also using that when estimation product rounding of the numbers to their highest. So 3670 and 180 का आपको राउंड ऑफ करना है, प्रोडक्ट निकालना है और उसको पहले हम राउंड ऑफ करेंगे। सो देयर हाईएस्ट प्लेस डज हेल्प इन गेटिंग एन एस्टिमेशन क्विकली, बट इट इज नॉट ऑलवेज क्लोज टू द एक्चुअल आंसर। ये चीज़ आपके माइंड में रखनी है कि ये दोनों जब हम प्रोडक्ट राउंड ऑफ करने के बाद जब ये दोनों नंबर के बीच में हम प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तब उसका आंसर तो हमें फास्ट मिलेगा, बट इट नेवर गिव्स अस टू द वेरी क्लोज टू आवर एक्चुअल आंसर। एक्चुअल आंसर से कभी नियर या क्लोज नहीं होता। सो फर्स्ट स्टेप्स, लुक एट द डिजिट टू द राइट ऑफ द डिजिट ऑफ द हाईएस्ट प्लेस इफ इट इज। हमें क्या डिजिट करना है, लुक एट द डिजिट टू द राइट ऑफ द डिजिट। आपको कहां पे देखना है, हाईएस्ट प्लेस के राइट वाली डिजिट। इफ इट इज, यदि देखने के बाद आपको पता चलता है कि इट इज लेस देन और इक्वल टू 2 है तो राउंड डाउन टू द हाईएस्ट प्लेस। एंड यदि ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 है then obviously round up to the highest place. So between 2 and 8 round up to the second highest place. अब समझो इस पूरे रूल को 3670 and 180. So between 2 and 8 round up to the second highest place. तो कैसे हमें परफॉर्म करना है ये चीज़ को कि 6 इज बिटवीन 2 and 8। आप देख सकते हो कि कौन, ये जो सेकंड डिजिट आपकी है वो 2 and 8 के बीच वाली है,
बराबर है ना, 2 और 8 के बीच में कौन सा नंबर आता है? 6. सो 6 इज बिटवीन 2 and 8. सो राउंड ऑफ टू द सेकंड हाईएस्ट प्लेस. राउंड ऑफ 3670 टू द नेक्स्ट प्लेस. आप क्या करेंगे? जो राउंडिंग ऑफ करेंगे वो सेकंड हाईएस्ट प्लेस का करेंगे. सो 3670 का हो जाता है 3700. मतलब हमें क्या करना है? जब हमारी सेकंड डिजिट 2 और 8 के बीच में होती है तब हम राउंड ऑफ सेकंड हाईएस्ट प्लेस का करेंगे. That will be become rounding of 3670 to the next place. So 3670 को हम राउंड ऑफ करेंगे तो it will become a 3700. लाइक दैट वे. उसी तरह 180 को हम कंसिडर करें तो 8 इज इक्वल टू 8 ही है. सो राउंड अप टू द हाईएस्ट प्लेस 180. 180 का हम राउंड ऑफ करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो हो जाएगा 200. तो इस तरह से हम प्रोडक्ट का एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं. सो 3700 एंड 200 इट विल बी कंसिडर 7,40,000. ये दोनों का प्रोडक्ट करने से राउंड ऑफ हमारा 7,40,000 आता है. और यदि एक्चुअल्स हम यूज़ करेंगे तो हमारे पास वो एक्चुअल्स क्या होगा? 3670 तो वो होता है 6,60,600 और ये हुआ 740 लाख. सो दैट इज नाउ क्लोज इन अप टू द एक्चुअल आंसर. अब जो पहली सिस्टम में आ रहा था उससे थोड़ा नज़दीक आपका आंसर आ रहा है. तो ये हुआ आपका एस्टिमेशन प्रोडक्ट विथ सच काइंड्स ऑफ द रूल ऑफ ग्रेटर देन 2 और लेस देन और इक्वल टू 8. मतलब 2 और 8 के बीच में आपका कोई भी नंबर हो तब आपको क्या राउंड ऑफ करना है? सेकंड हाईएस्ट प्लेस को ही राउंड ऑफ करना है. ये आपको याद रखना है. इज इट क्लियर? Now, finally, we have to conclude this session. Before that, we have to using recap. Estimation of the sum, estimation of the difference, and estimation of product. ये तीनों तीन जो रूल है वो रूल आपको आज होमवर्क में करना है. ये सभी रूल और तीनों तीन रूल को 3 बार आपको यही चीज़ लर्न करनी है और बाद में उसको लिखनी है. मतलब यू हैव टू परफेक्टली नो अबाउट ऑल दीज रूल्स. और ये होमवर्क के अलावा और भी चीज़ जो आज मैंने 3 एग्जाम्पल्स, एक सम का बताया, एक डिफरेंस का बताया और एक प्रोडक्ट का बताया, ये तीनों तीन विथ द स्टेप्स इसी वीडियोस में अवेलेबल है. सो यू कैन ऑल्सो राइट डाउन दिस थिंग्स इन today's homework. So there are 4 things in homework. One is this all rules of this screens is already you have to use in your homework, and previous 3 I explained in this video. All 3 examples for the sum, product and uh, difference. All 3 examples also be write down in your rough book and you have to send it as today's homework. I hope that you share immediately whatever you learn today, and without missing the homework or showing this all these things, you have to send me this particular homework without failing. Thank you very much for being with us. We will meet very soon into the next lecture. Thank you.